Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra। आज इस वीडियो में बेटा हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस जो कि क्लास 10th आईटी सिलेबस का यूनिट 1 है सब्जेक्ट स्किल्स में उसके सेशन 1 क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट के एमसीक्यू के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इन पार्ट 2 once again I have come up with 25 MCQs. Do watch part 1 if you haven't watched it already. Its link will be there in description. The basis for these MCQs will be the CBSE study material. You'll also find its link in this video's description. So let's begin with the MCQs right away. Again, I have this file opened up in front for all of you, and I'm going to take up the MCQs one by one. Part 2, again very simple MCQs, but अगर आपने टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा है, you will have no hassles in attempting them. So let's begin with question number 1, which says identify the correct order of style categories according to the picture shown below. Now this picture has been picked up from your styles and formatting window, and in styles and formatting window there are 7 icons at the top, as I also took up a question on this in part 1, and out of those 7 icons the first 5 have been given in this question, and you have to identify the correct order. I mean, you have to identify the name that associates with each icon. So I'll first of all show you over here, and then I'll take you to OpenOffice Writer to verify this, to verify the answer. So the first one, this is this is paragraph. Okay, this is paragraph style, एंड पैराग्राफ का आइकन आप याद रखना, मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ. दिस कैपिटल ए इज कैरेक्टर स्टाइल. ओके, कैपिटल ए इज कैरेक्टर स्टाइल. नाउ दिस इज थर्ड वन इज फ्रेम स्टाइल. ओके, देन फोर्थ वन, ये आप देख रहे हो वर्टिकल सा पेज का लुक है, दिस इज पेज स्टाइल. एंड द लास्ट वन इज लिस्ट स्टाइल. Okay, so these are the 5 icons in this order. So let us match which option out of A, B, C, D matches this. So if you can all see the last option, that is paragraph, character, frame, page and list. This is the right option for this answer. Okay, paragraph, character, frame, page, list. You can get a picture based question. There's no limit to the amount of questions that can be set. See, let's check from writer. Paragraph, character, frame, page, list. Okay, paragraph, character, frame, page and list. So this was question number 1. Right answer is option D. Then again, this is also a styles and formatting window. This icon has been picked up from there, and you are asked to identify this icon. So identify this icon. You all know this is the icon is used to quickly apply similar formats to scattered parts of your document, or similar formatting to some of the elements of your document in just one go, and this is fill format mode. This icon is it represents fill format mode. Let me take you to writer. See the 6th icon over here, and it reads fill format mode. इसकी टूल टिप पर fill format mode आता है बेटा. This is the right option. Okay, so थोड़े से picture based questions I've taken up for a change. You never know what type of questions might be asked. There are total 7 icons, और उन पर कुछ questions को मैंने सोचा आपके लिए frame करूं. So now again, identify the icon shown in the picture below. This is the last or the 7th icon on your styles and formatting toolbar. Okay, so and this icon, अब पहले इसको देखते हैं फिर आंसर पर आते हैं. See this icon, it matches this one. This is new style from selection. New style from selection icon, and see the option, correct option is D. Not add style, not create style, not load style, but this plus वाला icon. Plus से आप याद रखना, this is we are adding a new style, and completely it reads new style from selection. Okay, now next is question number 4, which says the last icon at the top of styles and formatting window, जिसकी अभी हमने बात की question number 3 में, is a multi-purpose button. Okay, it's a multi-purpose button that gives access to 3 different functions. How many? 3 different functions, which are new style from selection, update style and load styles. Is this statement true or false? It's absolutely true बेटा, because अगर आप अपने लास्ट आइकन पर क्लिक करोगे,
राइटर में लास्ट आइकन पर. ओके, सो इट गिव्स अ लिस्ट इन विच देयर आर 3 ऑप्शंस: न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, update style and load style. So this is a multi-purpose button which gives access to 3 different functions, and the correct names have been mentioned, so we are going to mark it as true. Okay, now OpenOffice, question number 5. OpenOffice Writer allows us to modify option A, only custom styles; option B, only predefined styles; C, both predefined styles and custom styles; D, neither predefined styles nor custom styles. Now see, OpenOffice Writer, custom styles का मतलब होता है new styles. Okay, new styles, user defined styles, and predefined are the ones that comes built in with Writer. So OpenOffice Writer आपको modify करने की permission देता है, और वो सिर्फ बिल्ट इन को ही अलाउ नहीं करता, जो आपके यूजर डिफाइंड स्टाइल्स हैं उनको भी अलाउ करता है कि आप मॉडिफाई कर सकें. सो इसका राइट ऑप्शन होगा सी पार्ट, दैट इज इट अलाउज अस टू मॉडिफाई बोथ प्री-डिफाइंड एंड कस्टम स्टाइल्स. ओके, ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. कई बारी वी फॉर्म एन इम्प्रेशन की जो चीज़ बिल्ट इन है वो ही अलाउ होती है मॉडिफाई करना, या जो बिल्ट इन है वो अलाउड बिल्कुल नहीं होती मॉडिफाई करना. इट्स नॉट सो. यू कैन मॉडिफाई बोथ कैटेगरीज, बोथ टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, either the ones provided by writer or the ones made by you. Now let's rush to question number 6, which says consider the given points 1 and 2 and select the correct option from A to D. तो इसके लिए सबसे पहले आप 1 and 2 पॉइंट्स को देखो. एनी स्टाइल्स, एनी चेंजेस यू मेक टू अ स्टाइल, यानी आप मॉडिफाई करो स्टाइल को, आर इफेक्टिव ओनली इन द करंट डॉक्यूमेंट, यानी जो आपका डॉक्यूमेंट है जिस पर आप वर्क कर रहे हो. ठीक है, इफ सपोज दिस इज योर करंट डॉक्यूमेंट और इसके अंदर आप कोई स्टाइल को चेंज करते हो. ठीक है, यू मॉडिफाई अ स्टाइल. ठीक, यू एडिट अ स्टाइल ओवर हियर, यू मॉडिफाई इन, यू चेंज अ स्टाइल ओवर हियर. ठीक है, एडिट और चेंज अ स्टाइल. तो अगर आपके पास और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोज डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट, ये आपका सपोज करंट डॉक्यूमेंट का नाम D3 है. क्वेश्चन कहता है कि आपने अगर D3 में किसी स्टाइल को एडिट किया, ठीक है बेटा, D3 में किसी स्टाइल को एडिट किया, तो वो सिर्फ D3 की ही स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो के अंदर उसके अंदर चेंजेस होंगे. इफेक्टिव वो करंट डॉक्यूमेंट में ही होगा. ये ट्रू है. ठीक है, जहां आप जिस डॉक्यूमेंट में आप स्टाइल को चेंज कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है वहां वो इफेक्टिव हो गई होगा. एनी चेंजेस दैट यू मेक टू अ स्टाइल आर इफेक्टिव इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स. मतलब D3 के अलावा और भी जितने डॉक्यूमेंट्स बने हुए, क्या वहां पर भी स्टाइल, ये स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में अपडेट हो जाएगा? नो, द आंसर इज नो. एनी चेंजेस यू मेक टू अ स्टाइल, अगर आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में स्टाइल को चेंज करते हो, वो वहीं इफेक्टिव होता है. ठीक है, वो चेंजेस दूसरे डॉक्यूमेंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होते. सो लेट्स रीड आंसर ए. ओनली 1 इज करेक्ट, only 2 is correct, both 1 and 2 are correct, both 1 and 2 are incorrect. So the correct option would be only 1 is correct. ध्यान रखिएगा, ये बहुत क्लोज आंसर्स होते हैं कि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट में स्टाइल को चेंज किया तो वो उसी डॉक्यूमेंट में उसके अंदर स्टाइल्स विजिबल होंगे. अगर आपको उसे दूसरे डॉक्यूमेंट में भी स्टाइल को अवेलेबल कराना है तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आप लोड करके करा लेना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट सी, इन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो which option does not show when the user clicks on new style from selection icon. So अभी हमने पढ़ा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन में 3 ऑप्शंस होते हैं. मार्क करते हैं कौन कौन से थे, याद करते हैं. न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन होता है, मल्टीपर्पज बटन होता है, अपडेट स्टाइल होता है, लोड स्टाइल होता है. कौन सा नहीं होता? ठीक है ना, ये वाला नहीं होता उसमें. सो मैंने इसको ऐसे कर दिया है, जबकि ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ टिक लगाए कि मतलब ये यहाँ होता है. दिस इज ट्रू, this is true, this is true, but this is not there. So the correct option for this one would be, the correct option, let me just quickly erase it so that you know there's no confusion. Wait, now, so this is the option, that fill format mode is not the option which is shown when we click on new style from selection icon. अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली भी ये करके दिखाया था. ठीक है, so which option does not show. Okay,
Now, question number 8. Identify the word processor part of OpenOffice software package. So, OpenOffice software package आपका एक freely downloadable package है. इसका word processor part कौन सा है? Word नहीं है, ठीक है, Notepad नहीं है, Writer है. आप किसमें, हम इतनी देर से बात ही किसकी कर रहे हैं, हम डिस्कस ही किसे कर रहे हैं, OpenOffice Writer, OpenOffice Writer. So, WordPad भी नहीं है, ठीक. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है तो वर्ड प्रोसेसर पार्ट. वर्ड प्रोसेसर पार्ट इज ऑफ OpenOffice सॉफ्टवेयर पैकेजेस राइटर, OpenOffice राइटर. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एन OpenOffice राइटर डॉक्यूमेंट? ठीक है ना. तो जब आप OpenOffice में एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ. लेट मी जस्ट टेक यू टू OpenOffice राइटर. सो सी, अगर आप फाइल, न्यू और डॉक्यूमेंट करते हो, फाइल, न्यू, डॉक्यूमेंट, वेट. ओके. Now this is a new document, untitled 1, untitled 2, OpenOffice Writer. Let's click on File Save As. ठीक. फाइल सेव एज पर जब आप क्लिक करते हो बेटा, तो अब आप यहाँ देखो ये ODT, द एक्सटेंशन इज ODT. जब भी आप इसको, सपोज आपने यहाँ पर इसको सेव किया, आपने यहाँ सेव कर दिया डेमो नाम से, तो ये ODT, demo.odt फाइल बनेगी, ODT. और फॉर्मेट OpenOffice में आप कुछ भी ओपन करो वो ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होता है, ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. दिस इज टेक्स्ट राइटर, ठीक है ना. अगर आप इसी तरीके से स्प्रेडशीट ओपन करोगे, मैं भी इसको कैंसिल कर देती हूँ, आप दो वर्ड्स पे फोकस करना इस क्वेश्चन के लिए. ODT इज द एक्सटेंशन ऑफ राइटर फाइल, और OpenOffice जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को ODF फॉर्मेट में सेव करता है, दैट इज ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. तो ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा था यहाँ पर. अब अगर आप करते हो फाइल न्यू, सपोज आपने स्प्रेडशीट ओपन किया, ठीक है. अब अभी आपका OpenOffice कैल्क ओपन हो जाएगा. जब आप फाइल सेव एज करोगे तो आप देखना यहाँ पर आएगा ODF spreadsheet, that is ODS. So ODF is common. This is the format, open document format, which is used by OpenOffice to save its document. अब जिस तरीके का component आप use करो, using calc, it will change to ODS. You are using base, it will change to ODB. You are using writer, it is going to change to ODT. So change नहीं मतलब वो उस extension में save हो जाएगा. So I'll just take you to the question where we were, and the question read that what is the extension of an OpenOffice writer document? ठीक. So the correct answer is ODT. 3-letter extension, that is ODT. और next question इसी से निकलता है, what is the full form of ODT children? ODT का full form क्या है मैं आपको बता देती हूँ. ODT stands for Open Document Text. ओपन डॉक्यूमेंट एक ही वर्ड है, जैसे OpenOffice लिखते हो आप विदाउट अ स्पेस, इसी तरीके से ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये आप याद रखना, ODT का फुल फॉर्म है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. OpenOffice.org is a free open source office suite. Now see, free means you don't have to pay anything. Okay, पे नहीं करना. Open source means it is available with its source code. So freely downloadable है along with the source code, and it is an open source free of cost office suite. मतलब जैसे popularly Microsoft Office के साथ components आते हैं, but Microsoft Office एक proprietary software है. आप OpenOffice आपको free of cost मिल जाता है along with its source code, और इसका आंसर है फ्री भी है. अगर क्वेश्चन में कर देते OpenOffice इज अ पेड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो आप इसको फॉल्स करते हैं. ना ही वो पे करना है और ना ही वो सोर्स कोड है. और अगर ऑप्शन होता OpenOffice इज फ्री प्रोप्राइटरी यानी लाइसेंस सॉफ्टवेयर, वो भी गलत होता. ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स कम्युनिटी दिन रात वर्क करती है हमारे लिए अच्छे सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए, जिन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उनका सोर्स कोड देख सकते हैं, एंड वी कैन इवन ऐड टू देम एंड रिलीज इट्स वर्जन्स. Fine. So let's be thankful to the OpenOffice community, and with that I move on to question number 12, which reads OpenOffice.org is often abbreviated as. मैं लिखती हूँ, देखो O कैपिटल, ये 3 लेटर उठाओ, O छोटा O. So abbreviation बनेगी कैपिटल O और छोटा O. So कौन सा ऑप्शन मैच होता है? डी ऑप्शन. डॉट नहीं लगेगा एब्रीविएशन में, ठीक है ना, डॉट नहीं लगेगा. तीनों कैपिटल O नहीं होंगे, डॉट नहीं आएगा. First capital O, second capital O, and then this छोटा वाला O, small case O. So the abbreviation would become OOO.
Okay, so the answer is option number D. Question number 13. OpenOffice.org saves file to open document format or ODF. देखो, अभी मैंने आपको बताया था ODF फॉर्मेट में सेव करता है. ODF के साथ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो ODT, स्प्रेडशीट है तो आपका ODS, बेस है तो ODB. सो दिस इज हाउ फॉर्मेट क्या रहता है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. ये भी एक फुल फॉर्म आ सकती है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ODF? यूल राइट ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. ओके, सो द आंसर इज ट्रू. अगर ये होता डज नॉट सेव फाइल टू ODF फॉर्मेट तो आंसर हो जाता फॉल्स. ओके, सो वन साइड ऑफ द कॉइन आपको पता होगा तो अदर साइड आप अपने आप कर सकते हो. Akriti is using, question number 14. Akriti is using load styles dialog box to copy styles from another document. उसका current document में वो load styles को use करके, feature को use करके, जो new style from selection icon में होती है, load style dialog box ने open कर लिया है. उसमें से वो अपने document में दूसरे document से styles लेकर आ रही है. Which button she should click to open a window from which she can select the required document. यानी ये document है आकृति का, ठीक है ना. उसमें आकृति ने लोड स्टाइल्स डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लिया है. मैं LS लिख देती हूँ. लोड स्टाइल्स डायलॉग बॉक्स ओपन है. उसमें वो किस बटन पर क्लिक करे जिससे किसी और डॉक्यूमेंट के स्टाइल्स आकृति के डॉक्यूमेंट में लोड हो सके. ठीक है ना. तो एक्सटर्नली दूसरे डॉक्यूमेंट से लेकर आ रहा है. जल्दी से लोड स्टाइल इसका आंसर है वैसे फ्रॉम फाइल, ठीक है ना. पर फिर भी मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ राइटर में ताकि आपके रिवीजन भी हो जाए. व्हेन यू क्लिक ऑन लोड स्टाइल्स डायलॉग बॉक्स, सी यू हैव दिस ऑप्शन फ्रॉम फाइल. जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरे डॉक्यूमेंट से स्टाइल्स को लोड कर सकते हो. ठीक है. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन मेकिंग योर चॉइसेस. So let's move to question number 15, which reads, which style includes font, alignment, borders, background, number formats, for example, currency, date, number and cell protection. अब जब नंबर फॉर्मेट आ जाएगा ना बेटा, नंबर फॉर्मेट, सेल वर्ड आ गया. हम बात कर रहे हैं कैल्क की और जिस स्टाइल की हम बात कर रहे हैं वो सेल स्टाइल है. आपके स्टडी मटेरियल में ओपनिंग पेज पर ही राइटर के 8 स्टाइल्स गिवन हैं जिनमें से 5 राइटर को बिलोंग करते हैं और 3 जो हैं वो अलग हैं, सेल, प्रेजेंटेशन और ग्राफिक्स. पेज स्टाइल कॉमन है राइटर और कैल्क में, बट हम कैटेगोरिकली अगर देखें तो हमारे पास 3 डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं. उन्हें भी आपने रीड करना है. यू नेवर नो, यू मे गेट अ क्वेश्चन, वो स्टडी मटेरियल में गिवन है, यू कैन नॉट चैलेंज इट कि वो क्यों पूछा गया. तो भले आप राइटर में हो बट ये आपको कैल्क का भी स्टाइल पता होना चाहिए. नंबर फॉर्मेट से याद रखना, करेंसी हो गया, डेट हो गया, सेल की प्रोटेक्शन, सेल को आपको सिक्योर करना है उसके कंटेंट्स को. सो विच स्टाइल विल यू यूज? सेल स्टाइल. एंड ये किसको बिलोंग करता है? कैल्क को. ठीक है. Next, question number 16, and it reads, dash styles in drawings and presentations. Dash styles in drawing and presentations include line, area, shadowing, transparency, font, connectors, dimensioning and other attributes. Okay, so अब आप ये भी आपके स्टडी मटेरियल के फर्स्ट पेज पर है और इसका आंसर है ग्राफिक्स. ग्राफिक्स, ड्राइंग्स से याद रखना, ड्राइंग्स मीन्स ग्राफिक्स. ग्राफिक स्टाइल्स in drawings and presentation include line area, shadowing, transparency, font, connectors and dimensioning and other attributes. आप सोच रहे होगे मैम ये हमें कहाँ से करा रही हैं. मैं आपको जल्दी से एक बारी आपका स्टडी मटेरियल दिखा देती हूँ सो दैट यू नो इवन यू आर रिलीव्ड कि हम कुछ भी कोर्स से बाहर नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना. आई जस्ट क्विकली टेक यू टू योर स्टडी मटेरियल एंड बहुत जल्दी चलते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट्स टाइम चिल्ड्रन. Just a minute and see. Once. Just a minute. Class 10th IT and these are books and this is IT 402 और इसके हम चलते हैं. जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ. मैंने कहाँ से सेल स्टाइल्स बताया, मैंने कहाँ से आपको ये रहा देखो ग्राफिक स्टाइल्स. ठीक है ना. ग्राफिक स्टाइल्स इन ड्राइंग्स एंड प्रेजेंटेशन. अभी मैंने आपको सेल स्टाइल्स बताया था, ये भी पढ़ लो. प्रेजेंटेशन स्टाइल्स इंक्लूड एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट्स, इंडेंट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट एंड टैब्स, क्योंकि अगला क्वेश्चन इस पर आने वाला है. मतलब इसी में मैंने एक क्वेश्चन और फ्रेम किया है, मैं आपको ले चलती हूँ उस क्वेश्चन पर. ठीक. सो इसका आंसर हो गया ग्राफिक्स. डोंट वरी, सब स्टडी मटेरियल पर है
और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब अच्छे से करोगे। पेज नंबर नोट कर लो, पेज नंबर, ये वाला पेज नंबर है आपका पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पर एक स्टाइल गिवन है, तो आप ये पेजेस 3 to 4 लर्न कर लेना, ठीक है ना। इन पर गिवन स्टाइल्स को लर्न कर लेना। देखो आओ, आइडेंटिफाई द ओपन ऑफिस इम्प्रेस स्टाइल दैट इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट्स, इंडेंट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट एंड टैब। अभी मैंने आपको दिखाया कौन सा स्टाइल था, प्रेजेंटेशन स्टाइल, ठीक है ना। which see it includes attributes of font, indent, spacing, alignment and tabs. So this is presentation styles. Fine. Now let's proceed to question number 80. We can create a new style by copying an existing manual format. आपने कुछ स्टाइल किया, कुछ टेक्स्ट लिखा, उसको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट किया, ठीक है, और फिर उसकी हेल्प से एक नया स्टाइल बनाया। क्या ओपन ऑफिस आपको एग्जिस्टिंग मैनुअल फॉर्मेटिंग की हेल्प से नया स्टाइल बनाने देता है? बिल्कुल देता है, आंसर इज ट्रू, ठीक है ना। आप नए स्टाइल को, कस्टम स्टाइल को बना सकते हो बाय न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, और एक इसका ऑप्शन होता है ड्रैग एंड ड्रॉप टू क्रिएट अ स्टाइल। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग मैनुअल फॉर्मेट की हेल्प से आप एक न्यू स्टाइल, एक कस्टम स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। चलो अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. आस्था इज यूजिंग लोड स्टाइल्स डायलॉग बॉक्स टू कॉपी स्टाइल्स इनटू हर डॉक्यूमेंट। फिर से लोड स्टाइल्स का क्वेश्चन आता है फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट, ऑब्वियस सी बात है। Which option she should select if she wants that the styles being copied from the other document should replace any styles of the same name in her document that she is copying them into? ठीक है ना। अब इन्होंने बोला आस्था का जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी कौन सा स्टाइल गिवन है। सपोज एक स्टाइल बना हुआ है S1 और आस्था जिस टारगेट डॉक्यूमेंट से कॉपी कर रही है या लोड कर रही है वो स्टाइल, ठीक है ना, S1 स्टाइल लेकर आ रही है। एंड आस्था वांट्स कि जब वो टारगेट डॉक्यूमेंट से S1 स्टाइल लेकर आए तो आस्था वाला S1 स्टाइल क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए और उसकी फॉर्मेटिंग बन जाए टारगेट डॉक्यूमेंट के S1 के अकॉर्डिंग। इस काम को करने के लिए आस्था इज यूजिंग लोड स्टाइल्स डायलॉग बॉक्स। नाउ टेल आस्था उसे कौन सा ऑप्शन यूज करना है। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स, आपको याद होगा अभी हमने ओपन किया था, ठीक। Let's select load style dialog box from here and see, ये ऑप्शन है बेटा ओवरराइट, ठीक है। ओवरराइट अगर आस्था करेगी लोड करते टाइम तो आस्था के डॉक्यूमेंट की जो स्टाइल था वो ओवरराइट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। सेम नाम के जितने भी स्टाइल आस्था के डॉक्यूमेंट में उस कैटेगरी के वो रिप्लेस हो जाएंगे। जो भी स्टाइल वो कॉपी कर रही है वो सेम नेम का अगर हुआ तो, अगर डिफरेंट नेम का होता है तो देखो ऐड होता है बेटा, और सेम नेम का होता है तो ओवरराइट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ओवरराइट, ठीक है। दैट नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. कंसिडर गिवन पॉइंट्स 1 and 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम A to D. You can drag and drop a text selection into the styles and formatting window to create a new style. बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। ड्रैग ड्रॉप मेथड होता है, सिलेक्शन करा और ड्रैग कर दिया स्टाइल्स फॉर्मेटिंग विंडो में। जिस कैटेगरी के स्टाइल्स में पैराग्राफ में ड्रॉप करोगे नया पैराग्राफ स्टाइल बन जाएगा, कैरेक्टर कैटेगरी में ड्रॉप करोगे उसका स्टाइल बन जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन। अभी आपने पढ़ा ऊपर भी कि एग्जिस्टिंग मैनुअल फॉर्मेट को कॉपी करके हम स्टाइल बना सकते हैं। सो हमने एग्जिस्टिंग मैनुअल फॉर्मेट की हेल्प से सिलेक्ट करके न्यू स्टाइल्स फ्रॉम अ सिलेक्शन ऑप्शन से उसको क्रिएट किया, तो ये भी ट्रू है, ठीक है ना। एक तो देखो बेटा, फिर से मैंने इस पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। आपको अगर स्टाइल क्रिएट करना है, आप यहाँ पर कुछ भी लिखकर उसे ड्रॉप करोगे तो इस समय पैराग्राफ कैटेगरी एक्टिव है, उसमें ऐड हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप स्टाइल क्रिएट कर लो टेक्स्ट और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करो, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन से क्लिक करके भी आप क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और आप उसको यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। सो देयर आर 2 ways of creating custom styles, drag and drop or creating a new style from selection. This is also true. So the answer is only option 1 is correct, only option 2 is correct, both 1 and 2 are correct. ठीक है, तो C part is the answer. ये दोनों ही तरीके सही हैं अगर हम नया स्टाइल बना रहे हैं या कस्टम स्टाइल बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लोड स्टाइल्स। आप कहोगे मैम लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस दे रही हैं, बट क्या करें बेटा, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। इट अलाउज द यूजर टू सेलेक्ट द कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स टू बी कॉपीड। ओके, out of the given 4 options, identify the categories of styles provided in the load styles dialog box. Correct combination आपको बताना है।
ठीक है ना। लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स आपको कैटेगरीज देता है। फिर से देखते हैं, देखो लोड स्टाइल्स पर क्लिक किया, ये आई बेटा कैटेगरी, टेक्स्ट कैटेगरी, फ्रेम कैटेगरी, पेजेस कैटेगरी, नंबरिंग कैटेगरी। हमारे पास टोटल 5 कैटेगरीज होती है, पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम, पेज, लिस्ट। लिस्ट की जगह यहाँ नंबरिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। और टेक्स्ट में पैराग्राफ और कैरेक्टर दोनों इनकॉर्पोरेटेड है, तो 4 हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। text, frame, pages, numbering. Text, frame, pages, numbering. Numbering will work as list and text is going to work for paragraph as well as character. So text, frames, pages, numbering. Text, frames, pages, list. सब में तो लगता ही नहीं है, लिस्ट नाम से नहीं होता, सारे स्टाइल्स पर अप्लाइड नहीं होता, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टेक्स्ट, फ्रेम्स, पेजेस, नंबरिंग। यानी टोटल कितनी कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर? 4 कैटेगरीज होती हैं। अच्छा क्वेश्चन था ना, कमेंट करके बताना। Question number 22. Consider the given points 1 and 2 and select the correct option from A to D. फिर आ गया ऐसा सा क्वेश्चन, चलो देखते हैं। Styles can be modified by updating a style from a selection. ठीक, Styles can be modified by loading, copying styles from another document or template. बिल्कुल ठीक है। सिलेक्ट करके करेंट डॉक्यूमेंट में आप स्टाइल के एक ऑलरेडी क्रिएटेड स्टाइल को नई सिलेक्शन से, नए सिलेक्टेड, नया फॉर्मेट करके उस टेक्स्ट को नए सिलेक्शन से उसको सिलेक्ट करके भी अपडेट कर सकते हो। बिल्कुल ट्रू है। अपडेट कर दिया स्टाइल के नाम पर, उस पर नया, भाई आपने उस स्टाइल को अपडेट करना था, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करी, उस एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज करी, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उसकी हेल्प से स्टाइल को अपडेट कर दिया। दूसरा, आप एक डॉक्यूमेंट में, करंट डॉक्यूमेंट में आप दूसरे डॉक्यूमेंट से स्टाइल्स को लोड करके ले। अभी आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि ओवरराइट कर दिया हमने स्टाइल को, ओवरराइट पर टिक करके, है ना। हमने क्वेश्चन देखा था आस्था वाले क्वेश्चन में कि ओवरराइट हुए उसके स्टाइल्स, है ना। सो बेसिकली आप दोनों ही मेथड्स आपके ठीक हैं कि डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट से आप स्टाइल्स को लोड करके लाओ, मॉडिफाई कर दो अपने डॉक्यूमेंट के स्लाइड्स को किसी और डॉक्यूमेंट की हेल्प से, या करंट डॉक्यूमेंट में ही टेक्स्ट को चेंज करो, फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करके सिलेक्शन वाले मेथड की हेल्प से अपडेट कर दो। सो बोथ आर ट्रू। पार्ट नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बेटा पहले सीधे सीधे देखो, आपके कोर्स में है अप्लाइंग स्टाइल्स 2 तरीके से, क्रिएटिंग कस्टम स्टाइल्स 2 मेथड से, मॉडिफाइंग स्टाइल्स, अपडेटिंग स्टाइल्स 2 मेथड से। पहले सीधे सीधे मेथड्स आप लर्न करो, ताकि ये लर्न होंगे तो मिक्स एंड मैच होकर अगर आएंगे तो गलत वाले आप पकड़ लोगे, है ना। मेरा एम्फेसिस आपको ये कि स्ट्रेट आंसर्स भी आपको अगर याद हुए तो उनका, अगर वो आपको क्लियर है कि यही 2 मेथड है, ये 2 मेथड याद है मुझे, तो तीसरा मेथड अगर गलत आता है तो आप ऑब्वियसली उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। सो क्वेश्चन नंबर 23, गिवन पॉइंट्स 1, 2, 3 को कंसिडर कीजिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम ए टू डी। क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स, तीनों ही पॉइंट्स में एक कॉमन है। क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स क्या क्या अलाउ करता है? इट अलाउज द यूजर टू टाइप अ नेम फॉर द न्यू स्टाइल ही और शी इज क्रिएटिंग। ठीक, बिल्कुल ट्रू है। जब स्टाइल क्रिएट करें तो उसको नाम तो देंगे, और क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स हमें स्पेस प्रोवाइड करता है जहां हम अपने नए स्टाइल का नाम दे सकें। It shows the names of existing custom styles of selected type or category। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने पैराग्राफ कैटेगरी में, सपोज आप पैराग्राफ कैटेगरी का स्टाइल बना रहे हो और क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो जितने भी आपके कस्टम पैराग्राफ स्टाइल्स हैं, कस्टम में सीपीसी लिख रही हूँ, सीपीएस, कस्टम पैराग्राफ स्टाइल्स हैं, जितने भी बने हुए हैं वो इसमें आ जाएंगे। पहले से बने हुए पैराग्राफ स्टाइल्स आ जाएंगे, क्योंकि हम कस्टम स्टाइल किसके लिए क्रिएट करें? पैराग्राफ टाइप का कस्टम स्टाइल क्रिएट करें, न्यू स्टाइल क्रिएट करें, तो क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स में ऑलरेडी क्रिएटेड कस्टम पैराग्राफ स्टाइल्स के नेम्स आएंगे। बिल्कुल ट्रू है, जो आप बना रहे हो, ठीक है ना। मैं इसको बड़े व्यू में दिखा दूंगी अभी आपको। इट शोज द नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टम स्टाइल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। ये गलत है बेटा, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ का कस्टम स्टाइल बना रहे हो तो क्रिएट स्टाइल बॉक्स में ऑलरेडी क्रिएटेड कस्टम पैराग्राफ स्टाइल्स मिलेंगे। अगर आप कैरेक्टर के लिए कस्टम स्टाइल बना रहे हो तो क्रिएट पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में आपको ऑलरेडी क्रिएटेड कस्टम कैरेक्टर स्टाइल्स मिलेंगे। इंटरमिक्स नहीं होगा कि एक ही, अब तक आपने जितने भी कस्टम स्टाइल्स बनाए वो सारे एक लिस्ट में आ जाएं, दैट्स नॉट पॉसिबल। इट विल शो एज पर द कैटेगरी ऑफ कस्टम स्टाइल यू आर क्रिएटिंग। सो लेट्स pick up the correct answer. Only one is correct? नहीं, both 1 and 2 are correct.
both 1 and 3 are correct, 1, 2, 3 यानी all are correct. So the correct option is both 1 and 2 are correct. ठीक, मैं आपको create style dialog box में दिखा देती हूँ जल्दी से. देखो, जब आप यहाँ से न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन करते हो, क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स आएगा. इस स्पेस में जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यू विल बी एबल टू गिव अ नेम टू योर पैराग्राफ. अभी मेरा पैराग्राफ स्टाइल एक्टिव है, लेकिन कोई कस्टम स्टाइल्स नहीं बने हुए, इसलिए लिस्ट ब्लैंक है. लेकिन अगर कोई कस्टम स्टाइल्स बने होते पैराग्राफ वाले, वो यहाँ आ जाते. अगर आप इसे कैंसिल करके कैरेक्टर के लिए बनाते न्यू स्टाइल, तो इस लिस्ट में कस्टम कैरेक्टर स्टाइल्स आते हैं और नया स्टाइल जो आप बना रहे हो उसका नाम आप यहाँ देते. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन मेंट. ठीक, क्वेश्चन नंबर 24. स्मृति यूज्ड हेडिंग 4 पैराग्राफ स्टाइल टू फॉर्मेट द हेडिंग्स इन हर डॉक्यूमेंट. पैराग्राफ स्टाइल उसने लिया हेडिंग 4, अपनी हेडिंग्स को फॉर्मेट कर दिया. नाउ शी वांट्स टू रिस्टोर द हेडिंग्स इन हर डॉक्यूमेंट टू देयर ओरिजिनल फॉर्मेट. ठीक, ये अप्लाई होगा किसी भी पैराग्राफ स्टाइल पर. अगर आपने पैराग्राफ स्टाइल लगाया किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पर, ठीक है, और आप क्या करना चाहते हो कि उस पैराग्राफ स्टाइल को आपने लगा लिया, सपोज आपको अच्छा नहीं लगा, आप चाहते हो जैसा था वैसा ही हो जाए. ठीक है, तो उसको रीस्टोर करना है हेडिंग्स को अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में. विच पैराग्राफ स्टाइल कैन शी अप्लाई टू डू द रिक्वायर्ड टास्क. ठीक है, सो मैं आपको एक चीज जल्दी से दिखाती हूँ जिससे आपका 25th क्वेश्चन भी हो जाएगा बेटा. पैराग्राफ में चलो, देयर इज अ स्टाइल कॉल्ड डिफॉल्ट. ये रिस्टोरेशन के लिए यूज होता है कि जैसा हमारा टेक्स्ट ओरिजिनल था, हमने स्टाइल्स अप्लाई करे, उसके बाद हम डिफॉल्ट पर क्लिक कर देते हैं, तो जो ओरिजिनल फॉर्मेटिंग थी वो रिस्टोर हो जाती है. पैराग्राफ की बात करें, कैरेक्टर में देखते हैं, वहां पर भी आप ये स्टाइल आपको मिलता है, डिफॉल्ट कैरेक्टर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है यानी रिस्टोर हो जाती है. आप चलते हो फ्रेम पर, वहां आपको डिफॉल्ट नहीं मिलता. आप चलते हो पेजेस पर, आपको डिफॉल्ट मिलता है. आप चलते हो लिस्ट पर, आपको डिफॉल्ट नहीं मिलता. सो डिफॉल्ट कहाँ कहाँ मिल रहा है? पैराग्राफ में, कैरेक्टर में और पेज में. पैराग्राफ, कैरेक्टर, पेज. और अब इसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन नंबर 24, 25 दोनों हो जाते हैं. कौन सा स्टाइल हम अप्लाई करेंगे? डिफॉल्ट स्टाइल, जिससे उसका स्टाइल्स रिस्टोर हो जाएं, ओरिजिनल फॉर्मेटिंग आ जाए वापस से. गिवन लिस्ट, ये जो लिस्ट है, इट गिव्स यू all the style categories in OpenOffice Writer. ये पांचों styles. Identify the correct combination of styles that provide default style. आपको default style कौन कौन सी इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है. करेक्ट, बिल्कुल सब कुछ कवर होना चाहिए. 1 and 2 यानी कि पैराग्राफ एंड कैरेक्टर. ठीक, एक मिस हो रहा है इसमें, कौन सा? पेज. 1, 2 and 3 पैराग्राफ, कैरेक्टर और फ्रेम में तो अवेलेबल ही नहीं होता. 1, 2 and 4 यानी पैराग्राफ, कैरेक्टर और पेज, ये आपका ठीक है. यहाँ पर तीनों पे आपको मिलता है डिफॉल्ट स्टाइल. 1, 2, 3, 4, 5 ना ही लिस्ट में मिलता है ना ही फ्रेम्स में मिलता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिफॉल्ट स्टाइल हमें मिलता है पैराग्राफ में, कैरेक्टर में और पेज में, आउट ऑफ द 5 स्टाइल्स प्रोवाइडेड बाय OpenOffice Writer. So with this I come to the end of this series of MCQ. I would love to hear your feedback, your comments. और मैंने एक छोटा सा स्माइली आपको बना दिया है क्योंकि मैं वीडियो को एंड करने वाली हूँ. हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन कहकर. हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू. कमेंट ज़रूर किया करो, तुम लोग नहीं करते हो, फिर भी मैं हर वीडियो में एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम्हारा कमेंट आएगा और तुम वीडियो को देखकर पसंद करोगे और मुझे मोटिवेट करोगे. सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस सेकेंड part of MCQ series, and I'll keep on coming with more and more for all of you. All the best children. God bless you. Once again, happy learning.